Hi everyone, I hope you are doing good. Since a lot of you have been asking about how did I clear prelims, uh, what approach did I follow, so I thought let's make a comprehensive video. Before start, a few disclaimers for this video. We are not going to do any tracing or no paper discussions and ना ही मैं कोई ऐसी shortcut trick बताने वाला हूँ आपको. Yeah, about this, I don't understand. What is the point of tracing source? You tell me how many different sources are you going to follow? How many times are you going to change your basic sources? That doesn't make any sense. Ultimately, जो mainstream questions है ना, आप उन्हें ही बना पाओगे एग्जाम हॉल में. It's not like कि जो भी क्वेश्चन आपके सोर्सेज से आ गया आप उसको कर लोगे. ऐसा नहीं होता है ना? So that's why it does not make any sense. So if you're expecting any of these, you can please skip this video. For the rest of the people, जिन्हें कोई realistic approach चाहिए, we can continue. Let's get started. So what to expect in this video? First of all, what all did I do to clear this prelims? I would say, यार luck factor तो था इस बार, but again, you cannot say anything क्योंकि सबके लिए common था, सबके लिए equal difficulty level था. So let's not go into this debate. Uh, Secondly, the sources which I followed and how did I make my short notes. About mocks, we will discuss. Why did not I attempt any mocks? About the current affairs coverage, how did I make notes of it? And lastly, the number of days and hours I gave for prelims. And at the end of this video, I have a special message for you. Let's get started. About me, the only thing which you should focus upon is I started my prep while I was in my job. I was in my full-time job. I did not have any basic background of humanities and UPSC subjects. So, sole purpose of making this video is to instill some confidence in you that it is doable. There's nothing sort of any extraordinary things you need to do to clear this exam. You can clear this just by following basic sources. Also, one more thing. Whatever I'm going to show you in next few slides, I have done that in span of 4 months only, including attempting PYQs, making short notes uh, for each subjects, and revising the whole thing 3 rounds. I have done that in span of 4 months only. So, what do I mean by that? Even if you have not yet started properly, it is still doable. Trust me on this. Just see and start from today only. What all did I do? These are the things which I did to clear the CS prelims. Talking about this, I did not leave any subject. Especially आप इस बात से एग्री करोगे कि आफ्टर 2023 प्रीलिम्स काफी अनसर्टेन हो गया है यार. ये यू नेवर नो किस सब्जेक्ट से कैसा पेपर आने वाला है. पर्टिकुलरली एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ के जा रहे हो, आप इस बार का पॉलिटी देख लो. पेयर एंड ऑल लगा के काफी रैंडम सा हो गया था ये पूरा पेपर ही. तो यू कैन नॉट रियली अफोर्ड एनी सब्जेक्ट टू स्किप. I made short notes for each and every subject, focused on the revision, planned 3 rounds of revision, solved PYQs, a lot of PYQs for every subject in test format. I relied on my basic sources. कोई फोमो क्रिएट नहीं किया मार्केट मटेरियल्स में जितने नए नए आ रहे हैं उससे कि ये कवर करना है, ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है. जस्ट आई स्टिक टू माय बेसिक सोर्सेस. इन्हीं को फॉलो किया और इससे ही एक सेल्फ बिलीफ मेंटेन करी, डेवलप किया और उसके थ्रू आई अपीयर्ड एंड I did clear the CS prelims. Sources I followed. यार काफी लोग पूछ रहे थे मेल्स में भी और कमेंट्स में भी कुछ लोग पूछ रहे थे. तो आई थॉट लेट्स मेक a summary of all the sources which I followed. These are the sources. जितने भी sources दिख रहे हैं इसके एडिशन में PYQs को फॉलो करके उसके वैल्यू एडिशन करे मैंने. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में there's nothing new. Everyone does this. लक्ष्मीकांत ही फॉलो किया, कोई स्पेशल नहीं, कुछ भी नहीं. इकोनॉमी एनसीईआरटी प्लस संजीव वर्मा एक जो स्टैंडर्ड बुक मैंने ऑलरेडी बताई उसको फॉलो किया, प्लस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से क्रक्स पॉइंट्स निकाल के आई विल शो यू इन द मीन टाइम जो मैंने एक्चुअल नोट्स बनाए अपने. आई विल शो दैट ताकि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन जाए चीजों की कैसे करते हैं. फॉर ज्योग्राफी ऑल्दो एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, आई एम स्टिल सेइंग दीज आर सफिशिएंट, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था थोड़ा बहुत लैकिंग है मेरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में. तो आई डिड फॉलो दिस. दास्तानिल मैम के यूट्यूब पे, मृणाल सर की यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स पढ़े हैं. ऑल्दो उनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है लेक्चर की, आई मीन वीडियो क्वालिटी, बट स्टिल आप थोड़ा एफर्ट लगेगा
आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो एक बेटर कमांड बनेगी आपकी सब्जेक्ट पे। और ये आपको मेंस तक के लिए क्लियर करा, मतलब मेंस तक में आपका सब्जेक्ट क्लियर कर देगा। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ आपकी मैपिंग वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा इससे। I'll show you how did I prepare international and national mappings from this. All right. So इसके मैंने फिर कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना लिए इनके। मैम के जो पीपीटी अवेलेबल है सर की वेबसाइट पे, वहां से निकाल के कंपाइलेशन बना लिया और उसे रिवाइज करता था। आई विल शो यू इन द मीन टाइम कैसे करा है। डोंट वरी अबाउट दिस। फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, जो सभी लोग करते हैं, नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल। ओल्ड एनसीईआरटीज फॉलो करी विद सम वैलिडेशन फ्रॉम द पीवाईक्यू। यू कैन सी दीज आर द बेसिक सोर्सेज व्हिच एवरीवन डज। देयर इज नथिंग न्यू। For modern history, again, nothing new, nothing special, only spectrum plus PYQs. For this art and culture, a lot of people follow Nitin Singhania. I don't know, but काफी lengthy है, broad है. I think जो cost to benefit ratio है उसका बहुत कम है. तो for that reason, I did follow this. Only IAS की एक art and culture की book है. It's around 100 pages only. तो उसमें काफी क्रिस्प वे में दिया है, उसको भी पूरा नहीं पढ़ना है। देर आर सिलेक्टिव एरियाज जो आप पीवाईक्यूज से पता चलेगा आपको कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें वो चीजें पढ़ के आप यू कैन कवर दिस सब्जेक्ट। क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें रिटेन नहीं कर पाओगे। तो रियलिस्टिक सॉल्यूशन ये है, कि आप बेसिक्स क्लियर कर लो, ताकि अगर कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लो, अदरवाइज जो टफ आ जाएगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा। श्योर अबाउट दिस। Science and tech and environment, these are the most ignored areas. I think you should not ignore this. PT 365 करा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती साइंस एंड टेक में। एंड डेली न्यूज़पेपर से जो नोट्स बनाए मैंने, प्लस शंकर आईएएस एंड PT 365, प्लस एडिशनली पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई विल शो यू सारे पीवाईक्यूज मैंने करे। मैपिंग्स के लिए यार, कंपाइल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मैं दिखाऊंगा। जैसे मैं मृणाल सर की, राजस्थानी मैम की वीडियोस की बात कर रहा था, तो उनकी वीडियोस की पीपीटी जो मिली थी मुझे, उससे मैंने मैपिंग्स प्रिपेयर कर लिए। साथ ही साथ गूगल पे जो मैप्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटीज में कुछ कुछ अच्छे मैप्स हैं, उनको कंपाइल करके एक नोट बना लिया। आई विल शो दैट। फिर कुछ अपने पर्टिकुलर निमोनिक्स बना लिए, कैसे याद करनी, कौन सी कंट्रीज के सी को बॉर्डर करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर करंट अफेयर्स यार, राउज आईएएस के यूट्यूब चैनल पे इफ यू सी, डेली न्यूज सिंप्लीफाइड करके एक डेली न्यूज की एनालिसिस आती है, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू की। तो वो मैंने पढ़ी थी, डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करता था। लास्ट में ऑफिस में ही करता था ये। ऑफिस से आके जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उसका स्नैप लेके नोट्स में डाल देता था। एंड साथ ही साथ द हिंदू न्यूज़पेपर डेली मैं बेसिस पे फॉलो कर रहा था। तो इससे क्या हुआ ना, एक लास्ट मोमेंट पे कोई प्रेशर नहीं आया कि चलो यार पूरे साल की करंट अफेयर कवर करनी है। ग्रेजुअली धीरे धीरे होता गया, और इंटरेस्टिंग भी काफी था डेली बेसिस पे न्यूज से अपडेटेड रहना। लास्ट में कुछ PT 365 के सोर्सेज मैंने रैपिडली गो थ्रू कर लिया था, कुछ यूट्यूब की चैनल्स की हेल्प से। समरी जो आती है इनकी, उससे कवर हो गया था ये। तो आई शो यू सम ऑफ दीज। फॉर एग्जाम्पल, पीवाईक्यूज कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा। जस्ट सर्च इट डाउन। आप कंपाइल करके एक एक सब्जेक्ट का कंपाइलेशन ले सकते हो, आप उसको टाइम बाउंड मैनर में अटेम्प्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक के लिए ऐसे करना है, कर लिया आपने, उसको टाइम बाउंड मैनर में अटेम्प्ट कर लिया। सिमिलरली इकोनॉमी का मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, जो मेडिवल का, मॉडर्न का, एवरीथिंग। और नोट्स की बात करें यार, तो नोट्स में क्या करना है आपको, व्हाट यू कैन डू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इकोनॉमी के नोट्स दिखाऊं, इकोनॉमी के, तो मैंने कई सारे सोर्सेज से कंपाइल करके बना लिया था। जो जो मैंने सोर्सेज पढ़े हैं, संजीव वर्मा प्लस इंडिया एनसीईआरटी प्लस बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इनको कंपाइल करके एक प्रॉपर नोट्स बना लिया। प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही नोट्स था, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, कमिटीज, कौन कौन से वर्ड्स का क्या डिफरेंट मीनिंग है, और कॉन्सेप्ट्स, वेरियस कॉन्सेप्ट्स करके एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इसके बाद मुझे बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और काफी अच्छा कमांड बन गया था इकोनॉमी में। इस तरीके से बना लिया था। यू कैन सी काफी कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ। मैंने आईपैड में ही बनाया था, और लास्ट में मैं लिख देता था कितना टाइम लगता है मुझे, कब किस टाइम पे रिवीजन किया। तो यू कैन सी 2-3 घंटे में पूरा इकोनॉमी रिवाइज हो जा रहा है मेरा। तो टाइम सेव होता है, लास्ट में कॉन्फिडेंस भी आता है। ये एक बसवा सर का राउज आईएएस में यूट्यूब चैनल पे इनका इकोनॉमी और बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का कंपाइलेशन आता है। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी फॉलो करो।
सो इनके पीडीएफ से थोड़ा बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन गई थी टॉपिक्स की, और कुछ फोमो भी जो क्रिएट हो रहा था वो नहीं रहा कि चलो करंट अफेयर्स भी अपडेट है इकोनॉमी स्पेसिफिक का। सिमिलरली एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी, आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करो। इससे आपको पता चल जाएगा, चलो पता चल जाएगा विच आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। आप अब जब बुक पढ़ोगे ना, इन स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करो। ऑलराइट, पीवाईक्यूज के साथ जब आप नोट्स बनाओगे आपका स्पेसिफिक रहेगा। हर बार यार कुछ की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम जो जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स ऐसे मिल रहे थे उनका एक ब्रॉड समरी बना लिया है। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग यू शुड आल्सो मेक दिस एंड रिमेंबर, बट एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो अगर कुछ याद किया हुआ ऑप्शन में दिख गया तो देर आर हाई चांसेस एंड फेयर चांसेस दैट यू विल मार्क इट करेक्ट। तो इसलिए बना लिया था इसको। अबाउट द वैल्यू एडिशन थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे पीवाईक्यू किया मैंने मैंने देखा ये चीजें मेरे नोट्स में नहीं थी, तो मैंने उसको वैल्यू ऐड कर लिया। सिमिलरली इंपॉर्टेंट आईबीसी साइट्स जो होती हैं, क्वेश्चन भी आते रहते हैं, और पीवाईक्यूज से क्या साइट्स के स्पेसिफिक नॉलेज मिली मुझे, उसको मैंने अपने नोट्स में ड्राफ्ट कर लिया। आप भी ऐसे कर सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट एरिया है, यू कैन वेरी वेल सी, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उसको आप इसका एक ब्रॉडली एक शॉर्ट नोट्स बना लो इसका कई सारे सोर्सेज से। एनसीईआरटी को फॉलो करके बना सकते हो, बट आई फील एनसीईआरटी में थोड़ी सी लिमिटेड डिटेल दी गई है इनकी, तो आप कुछ गूगल के एक सोर्स को फॉलो कर लो एंड वैल्यू ऐड कर लो अपने नोट्स में। आई डोंट रिमेंबर किस सोर्स से मैंने डाउनलोड किया, अदरवाइज आई वुड हैव मेंशनड इट, बट काफी हेल्पफुल था और बहुत डेप्थ में एनालिसिस है। कौन सी लिटरेरी सोर्सेज थी, इनकी टीचिंग्स क्या थी, टेनेट्स क्या थे, और डॉक्टर्स क्या थी, इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स, एवरीथिंग, कौन से काउंसिल्स हुई थी, कब हुई थी, कौन से मतलब श्वेतांबर्स दिगंबर्स में क्या डिफरेंस था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवरीथिंग यू कैन सी। और क्वेश्चंस भी आ ही जाते हैं इनसे ऑलमोस्ट। फिर पीवाईक्यू से क्या आपने एडिशनल सीखा, उसको वैल्यू ऐड कर दिया। सिमिलरली आप मेडिवल के बना सकते हो, मेडिवल का भी मैंने बना लिया। यार आई वुड से वन थिंग, मैप से थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ आप। वाई आई एम सेइंग दिस, कल के दिन कोई एग्जाम क्वेश्चन आ गया लेट्स से कि पर्टिकुलर डैम को किस किंग ने बनाया था, आई थिंक 2023 में भी कोई आया था, तो उस केस में क्या कर सकते हो ना, कुछ ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाएगी। हाउ? फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर डैम आ गया पता है, इस नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ता है, और जो ऑप्शन दिए गए उसमें दो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ईस्टर्न इंडिया में रूल करते थे, वो एम्पायर वो किंगडम, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो एटलीस्ट। तो दैट्स वाई सारे किंगडम्स का मैप में बेस पे अंडरस्टैंडिंग आप बना लो, एंड साथ ही साथ आप ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह से। माई पर्पज इज नॉट टू टेल यू हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू ग्लिम्स ऑफ इट, क्योंकि टाइम उतना नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा मैं एक एक चीज बताऊंगा। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प कि कौन से नोट्स को, मतलब कौन से सब्जेक्ट के नोट्स को कैसे बनाए, देन आई कैन मेक a separate video on it. Just tell me in comment section for which subject you need, so I can make a separate video on this. Similarly, modern history का जो स्पेक्ट्रम की समरी है ना, उसको आप बना लो एंड उसमें डिटेल पूरा कर लो आप। When you will revise, it will help you a lot और आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। सारे इवेंट्स को आप इसमें समरी में आपको प्रॉपर्ली लिखा ही होता है लाइन बाय लाइन, उसका डिटेलिंग लिख लो आप। इसका आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये बहुत हेल्प करेगा। तो इन दिस वे यू कैन कवर योर मॉडर्न स्पेक्ट्रम, से कवर कर सकते हो आप मॉडर्न हिस्ट्री, आई मीन टू से। सिमिलरली जैसे कुछ मुझे टेलीग्राम से कुछ सोर्सेज मिल गए थे, तो लास्ट में मैंने वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर दिया। आई डोंट रिमेंबर द सोर्स, सो सॉरी अबाउट दैट। आई मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी और के मटेरियल को यहाँ पे प्रेजेंट करना, बट टेलीग्राम से किसी का, आई डोंट रिमेंबर द नेम, टेलीग्राम से मिला था मुझे क्या। इसका कंपाइलेशन काफी अच्छा था। लेट्स से पूरा आपने रिवाइज किया, फिर लास्ट में रिवीजन के लिए कौन से डेवलपमेंट हुए थे ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिर सेमली प्रेस का डेवलपमेंट कैसा था, ये मेंस और आपको प्रीलिम्स में ऑब्वियसली हेल्प करेगा। व्हेन यू सी हर साल कुछ क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो मैंने एक कंपाइल कॉम्प्रिहेंसिव नोट बना लिया था पर्टिकुलर जो फेमस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उसके बारे में, उनकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हार्वेस्टिंग के लिए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन कैसा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो मैंने एनसीईआरटी की हेल्प लेके और गूगल की हेल्प लेके बना लिया था। फिर और साथ ही साथ एनसीईआरटीज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही थी उसको कंपाइल करके यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे स्नैप्स लेके डाल दिया। तो कुछ फोमो भी नहीं होगा कि ठीक है आप इससे रिवाइज करो, आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पार्ट छूट रहा है, वो भी नहीं होगा। एंड रिवीजन आप कब कर रहे हो,
आई डिडंट मेंशन दिस। सिमिलरली पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मैंने क्या किया था, लक्ष्मीकांत का एक रफ समरी बना लिया था, टैबलेटेड फॉर्म में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कैसी हैं, कौन को अपॉइंट करता है, जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है। आप अगर बुक देखोगे लक्ष्मीकांत, तो उसमें 60-70 पेजेस में ही दिया हुआ है। ऑल राइट, तो आप ये 2 पेजेस में पूरा रिवाइज कर सकते हो। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स। कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है आपका, है ना। तो इस तरीके से आप बना लो, और ये मैंने कर लिया था ऐसे। लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसको डाल दिया एक रफ वे में, बट प्रॉपर कवरेज है ये सारे, कौन से आर्टिकल में, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या प्रोविजंस थे इंपॉर्टेंट, वो सारा रफ फॉर्म में बना लिया सारा। तो काफी हेल्पफुल था ये मेरे लिए। पूरी लक्ष्मीकांत की समरी है बेसिकली। कुछ निमोनिक्स भी है रटने के लिए, और इम्पोर्टेंट जो है उसका पेज का स्नैप लिख के उसको सॉफ्ट कॉपी बना लिया मैंने। इट वॉज प्रीटी हेल्पफुल। पूरी लक्ष्मीकांत हार्डली 1-2 घंटे में रिवाइज हो जाती है मेरी। ऑलराइट, इस बार ही कुछ क्वेश्चन आया था फाइनेंस बिल से रिलेटेड। सिमिलरली मैप में यार क्या था कि मैंने क्या किया था, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी की मैपिंग के लिए रिवर्स नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व का एक बना लिया था। रिवर्स के लिए बहुत ही टाइम लगा था, आई डू एग्री, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, बट काफी हेल्पफुल है ये। अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपके फिंगर टिप पे हो जाती है, और एक सोर्सेज में, एक पेज पे मैं सारी रिविजवाइज कर सकता हूँ अपनी, है ना। तो ये एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस देता है। सिमिलरली जितने भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व थे, उसका मैंने 6-7 घंटे लगे थे इसको बनाने में। बट बनाने के बाद क्या होता है, एक पेज में आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उसके बारे में आप इंपॉर्टेंट चीजें लिख दो, कौन सी कहाँ से किस रिवर से पास हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आप खुद से बनाओगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज नेट पे तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट एक बार खुद से बनाओगे एटलीस्ट आपको एक जब प्लॉट करते हो ना, एक रफ आइडिया भी मिल जाता है। सिमिलरली वर्ल्ड मैपिंग के लिए, एज आई वाज टेलिंग, जो राजस्थानी मैम का लेक्चर्स था उनकी स्लाइड से सारे वर्ल्ड मैपिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल लिए। एडिशनली एडिशनली जो खुद के मैप्स थे उसमें मार्क कर लिया कुछ कुछ पॉइंट्स, जो इनके लिस्ट ऑफ माउंटेन्स टू लोकेट। मैम के लेक्चर्स में कई सारे ऐसे होमवर्क रहता है, तो आप उस चीज़ों को एक्चुअल में फॉलो करो। तो मैं अपने रूम में लगे हुए मैप से वो फॉलो करके उसका स्नैप लेके नोट्स में डाल देता था। तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर वर्ल्ड मैपिंग। स्टार्ट में कुछ कुछ निमोनिक्स भी प्रिपेयर कर लिए थे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस, इस बार ही क्वेश्चन में आया था कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी। आई थिंक यही तो था। तो पहला ही क्वेश्चन, मतलब लिटरली मेरे वर्ल्ड मैपिंग के नोट्स के पहले लाइन का पहला क्वेश्चन ही आ गया था। तो इट वॉज हेल्पफुल, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। सिमिलरली फॉर इंडिया मैपिंग, सारे राजस्थानी मैम के लेक्चर्स का स्लाइड्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ऐड किया। प्लस एनसीईआरटीज में आप देखोगे रिवर्स के बारे में बहुत डिटेल दिया है, कौन से ट्राइब कौन से रिवर के सराउंडिंग में रहती हैं, कौन से माउंटेन से, कौन से ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको भी मैंने कहीं फोमो ना हो इसलिए ये भी डाल दिया। एंड देन अगेन मैम के सोर्सेज से जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, सारे रिवर, सारे एरिया वाइज, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ एवरीथिंग। डैम का भी, कौन सा डैम किस रिवर पे लाई करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर्ट एंड कल्चर आई वुड लाइक टू शो। आर्ट एंड कल्चर का वो जो मैं बता रहा था, ओनली आईएएस की बुक से मैंने पढ़ लिया था, जो इंपॉर्टेंट एरिया थे उसको एक समरी बना ली मैंने, मतलब मेन मेन टॉपिक की। और बुक्स की बात करें तो बुक में जो चीजें थी, नीचे आई शो यू, ये बुक में इंपॉर्टेंट पार्ट जो था उसका मैंने वो पेजेस को मार्क करके एक नए नोट्स में बना लिया कि ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज, इसको कवर करना जरूरी है। दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर। अबाउट द मॉक टेस्ट, आई अटेंडेड ओनली वन। इट्स नॉट लाइक एकदम एक भी नहीं किया, बट ये भी सिर्फ मैंने टाइम चेक करने के लिए किया। व्हेन आई गॉट टू नो चलो मेरी स्पीड ठीक ठाक है, so I shifted my focus from mock to PYQs. Why I did that? Because it helps me stay focused on the relevant areas. And इससे ना एक MCQs का aptitude develop होता है आपके अंदर अंदर में। तो although it's up to you, you can refer mocks, you can attempt mocks. I'm not saying you should not. सबके अपने pros and cons होते हैं। But मेरे लिए जो optimum condition थी was to focus on PYQs. And I would still say कि आप PYQs पे ज़्यादा focus करोगे तो it would give you benefit. आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बन के आता है, और आप जो इम्पोर्टेंट एरिया है ना उसके सराउंडिंग में ही रहते हो।
कहीं दूर भटकते नहीं हो, आपका फोकस बना हुआ रहता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करो, मॉक्स में आप बस बेसिकली आप स्पीड बनाने के लिए अपना देखो। अबाउट दिस करंट अफेयर कवरेज, करंट अफेयर्स के लिए आई फॉलोड रॉज आई एस डेली न्यूज सिंप्लीफाइड का जो लेक्चर आता है यूट्यूब पे, उसके मैंने कुछ नोट्स भी बना लिए थे, आई विल शो यू। द हिंदू का न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे फॉलो करता था और नोट्स इसके डिजिटली बना लिए थे मैंने। प्लस लास्ट में रैपिड एक आउटलुक ले लिया था पीटी 365 के सोर्सेस। लेट मी शो यू कैसे मैंने नोट्स बनाए थे इसके। द हिंदू के प्रीलिम्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर देश का न्यूज़पेपर मैंने देखा, कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगा आर्टिकल, उसका फोटो लेके मैंने नोट्स में डाल दिया। जैसे ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया था, आई थॉट दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सिमिलरली सेंटर स्टेट का रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला। अब एंड इफ यू सी, इस बार ही क्वेश्चन आ गया था इससे। तो ये चीजें आपकी रहती हैं एग्जाम के एक वीक पहले, आप इससे गो थ्रू तो कर ही लेते हो। और डेली बेसिस पे मैं करता था, तो बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट हुआ नहीं लास्ट मोमेंट पे। जैसे ये राउत आईएएस के जो पीवाईक्यूज कराते थे वो लोग डेली बेसिस पे, डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे 2 4 10, तो उसको मैं करता था और फिर उसका फोटो लेके लास्ट में नोट्स में डाल दिया। जरूरी नहीं सब कुछ मैं रिवाइज करके जाऊंगा, बट एक रैपिड आउटलुक ले लूंगा जो चीजें मुझे लग रही हैं। एक बार जब बहुत थॉरली इसको अटेम्प्ट किया और पढ़ा है मैंने, तो उतना टाइम नहीं लगेगा मुझे रिवाइज करने में। माई पॉइंट इज दिस। आप सिमिलरली आप एट द सेम टाइम आप मेंस के लिए भी आर्टिकल्स एक्यूमुलेट कर सकते हो। अ, जो भी है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, मेंस का एक अलग से आप बना लो और बस डेट वाइज आप लिखते जाओ, चलो दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, आई डू एग्री, टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट होता है, लास्ट में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, बट स्टिल आप कर सकते हो। अमाउंट ऑफ टाइम आई डिवोटेड, फर्स्टली यार, I started my prelims preparation on 7th of February 2023. मतलब जो prelims पूरा specific prelims preparation. I dedicated 5 to 6 hours per day after the office consistently. I'll show you. I have a record of each and every day. मैं किस दिन में कितना घंटे पढ़ा हूँ. I keep a track. सब कुछ लिखता हूँ मैं. And I did plan 3 rounds of revision. इससे क्या होता है ना, कहीं ना कहीं retention capacity चीज़ों की बहुत ज़्यादा increase हो गई थी. And also I made all the short notes as I already told in between February and May. So my point is, if I can do, you can also. Even if you have not prepared any short notes, you have a lot of time to do that. You just need a courage and dedication. That's it. You're good to go. Talking about this, let me show you. नहीं तो कुछ लोग को लगे मैं ऐसे बस हवा में बातें कर रहा हूँ. आई हैव अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. स्टडी टाइम की बात करूँ तो आप लास्ट वीक से देख सकते हो. इट वाज लाइक लास्ट वीक जब मैंने ऑफिस से लीव ले लिया था 10 दिन का, तो उस दिन, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली इफेक्टिव टाइम है ये, दिस इज नॉट द सिटिंग टाइम, दिस इज इफेक्टिव टाइम. और सारे मेरे प्लान्स क्या हुआ करते थे, एंड द डे व्हेन आई स्टार्टेड, हर दिन का मेरे पास है, किस दिन मैंने कितने घंटे पढ़े इफेक्टिवली, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया. वीक 1 का आप यू कैन सी 27 फेब से लिखना शुरू किया था मैंने, बट मेरा प्रिपरेशन 7 से शुरू हुआ था, तो हर दिन का. एंड आई डिड प्लान 3 rounds of revision. Message for you. So at the end, all I have to say is, have self belief, just stick to the basics and basic sources, clear your conceptual understanding, you will be able to make it. This is all it takes. Nothing more, nothing less. Just have self belief that whatever you are doing is good. कोई भी आप सोर्सेस फॉलो कर रहे हो ना, आप थॉरली उसको फॉलो करोगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ेगी, एंड अल्टीमेटली आप उससे आपका जो रिक्वायरमेंट है ना वो मीटअप हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, and I hope it was helpful. See you around. Thank you so much.